चलता। Hi everyone, this is Farhad Sir's coaching class. I welcome you on my new video sessions Ghazali Darshan channel. Friends, as you know very well, vocabulary plays very important, very vital role to improve our English in a good way. We have learned several lessons based upon vocabularies. Today we are going to see one of the most important topic, that is verb. Yes friend, before we have studied the parts of speech. You have studied the parts of speech. You know very well. Noun, pronoun, adjective, adverb, conjunction, preposition, article, interjection and verb. Yes friend, verb. Today we are going to learn verb in detail. Firstly, I am going to tell you the meaning of verb with its definition and different examples, and thereafter I will explain its forms as well as how to use verbs in different sentences and what is the weightage of verb in our state board examination. So let's learn verb. If we look the meaning of verb in any dictionary, the dictionary may be the online and offline or the printed dictionary. You can see there the meaning of verb in just one word, action word or action showing word. In Urdu, its meaning fail or calm, and its meaning in Marathi kriya. So friend, we will see its definition for our better understanding. I am going to tell you the definition of verb. So put its meaning into your mind and try to memorize and learn what I am going to tell you, the meaning or the definition of the verb. Verb means a word that shows an action in a sentence is called verb. I am repeating. The word which shows the action in a sentence, we call that verb, that English word, verb. In Urdu, एक ऐसा इंग्लिश का लफ्ज जो किसी सेंटेंस में काम को दिखाता है या किसी सेंटेंस में काम जाहिर होने को बताता है, उसे हम वर्ब कहते हैं. Now let's see the different examples of verb through the different sentences. As I told you, verb is the part of speech, and verb means in Urdu fail, not F-A-I-L, fail, the English word. Calm, not calm, C-A-L-M, calm. It means fail, अफाल अंजाम देने वाला, काम करने वाला. And its meaning in Marathi kriya, in Marathi vyakaran. Now let's learn the different examples, the different forms of verb through the sentences. Here, in the first sentence, which I am going to tell you, which I am going to explain you before you, we have now quarantine. Here in the first sentence, quarantine is the verb and it is here in the third form of the verb. Quarantine is the base verb. It means in Urdu, अलहाइदगी इख्तियार कर, अलग रहना. Quarantine with it ed is the second form, and here helping verb in the sentence with the verb form, it is the third form of the verb. So quarantine is the verb and it is in the third form. In the second sentence, she sent them a message. Here sent is a verb and here it is in the second form. Send is
the verb base form, it means bhejna. Send, here the second form, and same spelling the word sent as a third form. Now in the third sentence, India is facing many problems. Here in the sentence, the word facing is here the verb in the form of ing. Verb base form here, the face. Face, I am not talking about the parts of body, the face, the look. I am talking about FACE. Actually, it is the homograph. Both words are same in spelling, in sound, but different in meaning. That is homograph or homograph. I am using here word facing with ing form. It means verb ing form, facing, मुकाबला करना, सामना करना. And in the last sentence, here they observe, they keep fast. Observe and keep here is the verb base form. Now let's learn the whole translation of these 4 sentences. We have now quarantined. अब हमने अलाहिदगी इख्तियार कर चुके हैं. She sent them a message. वो उन्हें पैगाम भेज चुकी है और भेजी है. India is facing many problems. हिंदुस्तान बहुत सारे मसाइल का सामना कर रहा है. They observe, they keep fast. वो रोज़ा रखें. तो इस तरह से हमने वर्ब के मीनिंग, वर्ब की डेफिनेशन को सीखे और अलग अलग सेंटेंसेस में उन वर्ब को किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है ये भी हमने सीखे. तो आइए अब हम वर्ब के अलग अलग फॉर्म्स को सीखते हैं. फॉर्म्स ऑफ वर्ब यानी वर्ब की शक्ल. आमतौर पर हम कोई भी डिक्शनरी को फॉलो करते हैं, हम कोई गाइड देखते हैं, हम किसी इंस्टीट्यूशन पर जब ग्रामर को सीखते हैं तो हमें आमतौर पर वहाँ पर वर्ब के 4 फॉर्म से इंट्रोड्यूस्ड कराया जाता है या हम इंट्रोड्यूस होते हैं. हम उन 4 फॉर्म को बिल तरतीब यहाँ पर देखते रहें. जैसे कि यहाँ पर चार्ट मैंने वर्ब के फॉर्म का आपके सामने यहाँ पर बोर्ड पर डिस्प्ले किया है. यहाँ पर वर्ब बेस फॉर्म, वर्ब पास्ट टेंस फॉर्म, वर्ब पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म और वर्ब आईएनजी फॉर्म. इसका मतलब वर्ब के कुल यहाँ पर 4 फॉर्म का जिक्र किया. इसको बिल तरतीब हम वर्ब का पहला फॉर्म V1, वर्ब का दूसरा फॉर्म V2, वर्ब का तीसरा फॉर्म V3 और वर्ब का आईएनजी फॉर्म, इस नाम से भी हम इसको रेफर करते हैं. अब हम इस चार्ट में इसकी डिफरेंट एग्जाम्पल देखेंगे और इस चार्ट को हम केयरफुली ऑब्जर्व करेंगे, इसकी स्टडी करेंगे. अगर हम इस चार्ट को कीनली ऑब्जर्व करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमें वर्ब के टाइप्स का भी पता चल जाता है. तो हम इस वर्ब के अलग अलग फॉर्म्स को बगौर मुताला करते हैं. यहाँ पर वर्ब के बेस फॉर्म में मैंने यहाँ पर कॉल आपके सामने डिस्प्ले किया. इसका मतलब है बोलना, बुलाना. कॉल्ड ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है जहाँ पर ईडी लगकर इसकी सेकंड फॉर्म की स्पेलिंग तरतीब पाई है. और वर्ब के तीसरे फॉर्म में यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में कॉल्ड ईडी की शक्ल में लिखा गया है, जबकि इसका आईएनजी फॉर्म कॉलिंग होता है. ठीक उसी तरह से अगर हम कीप इस वर्ब को देखते हैं, इसका मतलब है रखना. केप्ट और केप्ट इसका सेकंड और थर्ड फॉर्म बनता है, जबकि कीपिंग इसका आईएनजी फॉर्म होता है. यहाँ पर तीसरे नंबर पर स्पीक यानी बोलना, इसका सेकंड फॉर्म स्पोक होता है और जबकि इसका थर्ड फॉर्म स्पोकन. इस तरह से स्पेलिंग में इसकी तब्दीली होती है और स्पीकिंग एज यूजुअल यहाँ पर आईएनजी फॉर्म में इस्तेमाल करेंगे. अब तीसरे के बाद यहाँ पर चौथा नंबर जो पुट है, पुट इस सेम स्पेलिंग के साथ में हम इसके वर्ब के सेकंड, थर्ड और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को लिखते हैं, जबकि इसके डबल टी के साथ में हम पुटिंग को आईएनजी फॉर्म में रखते हैं. अब हम यहाँ पर सर्च को देखेंगे. ढूंढना, तलाश करना, सर्च और सर्चिंग एज यूजुअल इसकी तब्दीली होगी डिफरेंट फॉर्म में. और यहाँ पर कैरी, इसका सेकंड फॉर्म कैरिड होगा, लाना, ले जाना. और कैरिड इसका थर्ड फॉर्म होगा. यहाँ पर वाई को निकालकर
उसकी जगह पर सेकंड और थर्ड फॉर्म में हमने IED का इस्तेमाल करें। लेकिन याद रखें, हर एक वर्ब जो Y पर एड होता है, वर्ब का बेस फॉर्म जो Y पर एड होता है, जरूरी नहीं कि हर एक के साथ में हम Y की जगह पर IED इस्तेमाल करें। हमको इसका मुताला करना होगा कि किन किन वर्ब के बेस फॉर्म के साथ में Y निकाल कर हम IED इस्तेमाल करते हैं और कहाँ पर हम Y के साथ में डायरेक्टली ED इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि ओबे, फर्मा बरदारी का, इसमें OBEY। अब यहाँ पर IED इस तरह से वर्ब का सेकंड और थर्ड फॉर्म तरतीब नहीं पाएगा, बल्कि यहाँ पर Y के बाद में डायरेक्ट ED इस्तेमाल होगा सेकंड और थर्ड फॉर्म में, जैसे कि OBEYED इस तरह से ये तरतीब पाएगा। लेकिन यहाँ पे कैरी में हमने जहाँ पर वर्ब के बेस फॉर्म में Y था, इसका सेकंड और इसका थर्ड फॉर्म यानी पास्ट टेंस फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म को जब तरतीब दिए तो Y की जगह पर हमने IED और IED का इस्तेमाल करें, जबकि Y के साथ भी हमने वर्ब का ING फॉर्म कैरिंग इस्तेमाल करें। तो इस तरह से हमने ये सारे वर्ब के फॉर्म लर्न करें। अब थोड़ी देर के लिए कंसीडर करें कि इंग्लिश में जितने भी वर्ब्स वो सारे के सारे यहाँ पर डिस्प्लेड उनकी कुछ एग्जाम्पल। एक्चुअली हम गिन कर नहीं बता सकते कि इंग्लिश में टोटल इसका एग्जैक्ट नंबर वर्ब का कितना है, टोटल कितने वर्ब्स हैं। ये अनकाउंटेबल है, ये काउंटलेस है, इसको कोई भी गिन के बता नहीं सकते। लेकिन हमने चंद एक यहाँ पर कंसीडर कर, अगर हम इस चार्ट को गौर से पढ़ते, इसका मुताला करते हैं, तो यहाँ पर हमको इस चार्ट में ये बताने की कोशिश की गई है कि वर्ब के कुछ फॉर्म ऐसे होते हैं जिसके वर्ब के बेस फॉर्म से जब वर्ब के पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल की स्पेलिंग तरतीब पाती है तो बहुत सारे वर्ब के फॉर्म पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल में ईडी की शक्ल इख्तियार करते हैं, और बहुत सारे वर्ब ऐसे भी होते हैं जिसके पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल की स्पेलिंग में कभी उसकी स्पेलिंग बदल जाती है और कभी उसकी स्पेलिंग सेम होती है, जैसे कि यहां पर दिखाया गया। इस चार्ट पर से हम कंसीडर कर सकते हैं, इस चार्ट पर से हम वर्ब के फॉर्म पर से वर्ब के टाइप को हम समझ सकते हैं। तो इस तरह से हमने ये चार्ट को पढ़े। अब हम देखेंगे कि किस तरह से हम इन वर्ब का सेंटेंसेस में इस्तेमाल कर सकते हैं और मीनिंगफुल सेंटेंसेस किस तरह से बना सकते हैं, और साथ ही साथ में हमारे स्टेट बोर्ड एग्जामिनेशन में इन वर्ब की, तो हमने इस तरह से वर्ब के अलग अलग फॉर्म्स का मुताला किए, वर्ब की मीनिंग, वर्ब की डेफिनेशन और उसके फॉर्म्स की तरतीब किस तरह से पाती है, हमने उसको अभी लर्न किए। अब हम वर्ब के अलग अलग फॉर्म से बनने वाले अलग अलग सेंटेंस का यहाँ पर मुताला करेंगे, स्टडी करेंगे। देखें, जैसे कि यहाँ पर सेंटेंस में मैं यहाँ पर कॉपी कर रहा हूँ शी, यहाँ पर वर्ब का पहला फॉर्म मेक्स कॉल टू हर मॉम। अब इस सेंटेंस को गौर से देखिए। इस सेंटेंस में यहाँ पर शी मेक्स कॉल टू हर मॉम, यहाँ पर वर्ब मेक है और यहाँ पर वर्ब के साथ में एस, इसको ऐड किया गया है, ये एडिशनल वर्ड लेटर इस्तेमाल किया गया है क्योंकि यहाँ पर शी ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है। अगर हमारा कोई सब्जेक्ट ऐसा है जो थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, यानी कि ही, शी, इट और कोई एक नेम, तो उसके साथ में हम जब भी वर्ब की पहली शक्ल लिखते हैं तो तब उसके साथ में एस, एस या आई एस इस तरह से तरतीब पाते हैं। तो यहाँ पर वर्ब का पहला फॉर्म यहाँ पर मेक्स है, तो यहाँ पर शी मेक्स अ कॉल टू हर मॉम, वो उसके मॉम को कॉल करती है। इसका दूसरा सेंटेंस यहाँ पर अगर हम देखें शी इज, अब हमको पास्ट में बताना है तो हम यहाँ पे शी के साथ में वॉज इस्तेमाल करेंगे। इज ये प्रेजेंट टेंस को बताता है जबकि वॉज ये पास्ट टेंस को बताता है। शी इज और वॉज, मेक का यहाँ पर आईएनजी फॉर्म होगा, मेकिंग कॉल टू हर मॉम। तो इस तरह से सेंटेंस में यहाँ पर शी इज
शी वॉज मेकिंग कॉल टू हर मॉम, वो उसके मॉम को कॉल कर रही है या वो अपने मॉम को कॉल कर रही थी। यहाँ पर इज और वॉज ये वर्ब के साथ में अगर हम आईएनजी के साथ में इस्तेमाल करें तो ये उसके टेंस के लिहाज से हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लिहाजा यहाँ पर पहले सेंटेंस में वर्ब मेक्स ये पहली शक्ल में है, जबकि मेकिंग यहाँ पर वर्ब आईएनजी फॉर्म में इस्तेमाल किया गया है। जबकि हम तीसरा सेंटेंस जब देखते हैं तो इस सेंटेंस में शी हैज़, और अगर मुझे इसको पास्ट टेंस में बताना है तो मैं हैड इस्तेमाल करके बताऊंगा। और यहाँ पर वर्ब है मेड थर्ड फॉर्म, आगे सेंटेंस कॉल टू हर मॉम। इस सेंटेंस में शी हैज और हैड मेड कॉल टू हर मॉम, यहाँ पर मेड ये जो वर्ब दिया गया है ये थर्ड फॉर्म में, हैज ये प्रेजेंट टेंस के साथ में थर्ड फॉर्म इस्तेमाल किया गया है। जबकि हमको वही सेंटेंस पास्ट टेंस में इस्तेमाल करना है तो हम हैड के साथ में उसको इस्तेमाल करते हैं। तो मेक का SES फॉर्म में से S फॉर्म यहाँ मेक्स, मेकिंग इसका वर्ब का ING फॉर्म, मेड इसका थर्ड फॉर्म, और यही सेकंड फॉर्म भी इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पर हम चौथा सेंटेंस देखेंगे, शी मेड कॉल हर मॉम और टू हर मॉम। तो इस सेंटेंस में हम देखेंगे कि मेड यहाँ पर वर्ब है और ये वर्ब की दूसरी शक्ल। तो इस तरह से इन चारों भी सेंटेंस को हम अगर गौर से देखते हैं तो इसमें अलग अलग वर्ब की शक्लों का यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिया गया है। वर्ब का पहला फॉर्म, वर्ब का ING फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म और वर्ब का सेकेंड फॉर्म। बिलतरतीब हम इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि वर्ब का बेस फॉर्म, वर्ब का ING फॉर्म, वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म और वर्ब का पास्ट टेंस फॉर्म। तो इस तरह से अलग अलग सेंटेंस में हम अलग अलग वर्ब के फॉर्म का इस्तेमाल करके मीनिंगफुल सेंटेंसेस बना सकते हैं। अब हमको ये जानना है कि इस वर्ब का हमारे एग्जाम में क्या वेटेज, खास तौर पे स्टेट बोर्ड एग्जामिनेशन। तो इसके बगैर हम कोई सेंटेंस को कंसीडर नहीं कर सकते। एक बार अगर आपने अच्छी तरह से वर्ब का मुताला करें तो इसका इस्तेमाल हमारे इंग्लिश की लैंग्वेज स्टडी में, इसका इस्तेमाल हमारे ग्रामर के कई कई लेसन्स में होता है। जैसे कि हम टेंसेस इस लेसन को सीख रहे हैं तो हम वर्ब के बिना उसका तस्वुर नहीं कर सकते, और अगर हम चेंदा वाइज इस लेसन को सीख रहे हैं तो तब भी उसमें वर्ब का बहुत बड़ा दखल है। उसी तरह से हम अगर लैंग्वेज स्टडी में वर्ड चेन इस लेसन को सीखते हैं तो वहाँ पर वर्ब चेन एक बनाना होता है हमें, और वर्ब के बिना हम उसको कंसीडर नहीं कर सकते। अब देखिए मेरे पास यहाँ पर लास्ट ईयर का एक बोर्ड का एग्जामिनेशन का पेपर है, SSC बोर्ड एग्जामिनेशन, और यहाँ पर ग्रामर में वर्ब के बेस अपॉन में एक क्वेश्चन पूछा गया था। अब मैं यहाँ पर उसको डिस्प्ले कर रहा हूँ आपके सामने। वी नीड टू ब्रिंग इमेजेस, और यहाँ पर हमको ये सवाल पूछा गया था कि इस सेंटेंस में जो इन्फिनिटिव है उसको अंडरलाइन करो। तो इन्फिनिटिव क्या है इस सेंटेंस में? टू ब्रिंग, ये इन्फिनिटिव। अब यहां पर अगर हम गौर से देखें अभी तक के पूरे लेसन, तो ब्रिंग से पहले टू का इस्तेमाल करके जो वर्ब की तरतीब बनती है उसको हम इन्फिनिटिव कहते हैं। तो लिहाजा अगर हमने वर्ब के चार्ट का मुताला करें तो हमें सिर्फ 4 फॉर्म का आइडिया नहीं आता है, बल्कि वर्ब के अलग अलग फॉर्म्स होते हैं। ना सिर्फ वर्ब का पहला फॉर्म बेस फॉर्म, दूसरा फॉर्म पास्ट टेंस फॉर्म, तीसरा फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, चौथा फॉर्म वर्ब का ING फॉर्म ही वर्ब के फॉर्म नहीं, बल्कि वर्ब का SES IS फॉर्म भी बहुत अहमियत होता है उसकी स्टडी करना, और उसी तरह से इन्फिनिटिव को भी लर्न करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, बहुत अहमियत का होता है। तो ये तो हो गया इस पर शॉर्ट डिस्कशन, और होप आपको ये सारी चीज़ें वर्ब की तारीफ, वर्ब के मायने
वर्ब के फॉर्म्स, वर्ब के टाइप्स और साथ ही साथ में वर्ब के सेंटेंसेस में किए गए इस्तेमाल का आपको बहुत अच्छी तरह से स्टडी हो गई होंगी, आपने समझ लिए होंगे। अगर इसमें आपको जो कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप बिल्कुल भी मुझे कमेंट सेक्शन में आप इसके बेस अपॉन सवाल कर सकते हैं और कंटिन्यूसली वर्क के जो डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं वो हम आपको कंटिन्यूसली आपके पर्सनल नंबर पर हम उसके लिस्ट को शेयर करते रहेंगे और बहुत सारे वर्क के फॉर्म्स को हम याद करते रहेंगे। आप जितने वर्क को फॉर्म को याद करेंगे आपकी वोकैबुलरी उतनी मजबूत होगी। तो गज़ाली चैनल को आपने अभी तक किसी से शेयर नहीं किया होगा, सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, तो आप अपने फ्रेंड्स, अपने पेरेंट्स को भी इस गज़ाली चैनल के थ्रू में ज्वाइन कराएं और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करें।